Assalamu alaikum. This video is for the guidelines of how to check whether your visit visa of your family member is approved after applying or not, and if it is approved, then how to download the visa once you have made the payment. अस्सलाम वालेकुम सब साथियों को। ये वीडियो जो है इसमें इस चीज़ की गाइडेंस दी जाएगी कि अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई किया है, फैमिली वीज़ा नहीं बल्कि विज़िट वीज़ा, तो आप विज़िट वीज़ा जब जवाज़ात में जाके अप्लाई करते हैं फ़िज़िकली, तो वो अप्रूव होने के बाद आपको सहल ऐप पे कैसे चेक करना है, क्योंकि सहल ऐप पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आपको मैनुअली जाके सहल ऐप में चेक करना पड़ता है कि विज़िट वीज़ा जो है वो आया है या नहीं आया। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू योर सहल ऐप। वंस यू लॉग इन एट द फर्स्ट टैब द प्रोफाइल पेज, you will go to Ministry of Interior and there will be an option of visas. This option is usually not visible when your visa is not approved. This becomes visible only after your visa is approved. So you will click it and you will find something like a number which is basically the application number of the person for which you have applied visit visa for. जब आप सबसे पहले सहल की ऐप लॉगिन करेंगे, तो सहल की ऐप लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे फर्स्ट टैब जो प्रोफाइल है यहाँ पे, और यहाँ पे आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में। जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आप जाएंगे तो यहाँ पे वीज़ाज़ का ऑप्शन आ रहा होगा, जो सिर्फ तभी अपीयर होगा जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है जवाज़ात में अप्लाई करने के बाद। जब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता तब तक ये वीज़ाज़ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा होगा। तो जैसे ही आप विज़िट करें जवाज़ात फॉर द फर्स्ट टाइम और अप्लाई करें और वो आपको कहें कि आपके पास सहल में मैसेज आ जाएगा, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे वीज़ाज़ का ऑप्शन आ जाएगा। Then once you have this option of visas, you click it and this number you have to click, and this will give you information about your family members visit visa, like their name and the type of visa, issue date, expiry date. This is a confirmation that the visa has been approved and now you have to go back to Javazat to pay the fees for the visa and get the visa. तो इसमें आप ये करेंगे कि जब आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जाएंगे और ये वीज़ाज़ का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर एक नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा जो कि वीज़ा एप्लीकेशन नंबर है आपके, जो आपने वीज़ा अप्लाई किया है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इस पर आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस फैमिली मेम्बर की जिसका आपने वीज़ा अप्लाई किया है, जैसे उनका नाम, टाइप ऑफ वीज़ा, इशू डेट क्या है वीज़ा की, क्योंकि ये वीज़ा अब इशू हो चुका है उनकी तरफ से, अप्रूव हो चुका है, तो उसकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई आ रही होगी। ये इस चीज़ का प्रूफ है, इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि वीज़ा उनकी तरफ से अप्रूव हो चुका है, और ये इस चीज़ का इशारा है कि अब आप जवाज़ात में जाके इसकी फ़ीस पे करें ताकि फिर ये वीज़ा आप डाउनलोड कर सकें। Now we come to the second part. Once you go to Javazat and you pay the fees for visa, then you will be informed by the people there that you can download the visa from Sahal app. Again, you will not get a notification on Sahal app, but you have to do it manually. For that, you have to go to the second option, services. In services, you have to go down to Ministry of Interior again. You will find Ministry of Interior, click it, and there you will see an option of visa services. This will also appear once the visa has been paid. When you click it, there will be two options, domestic worker visa and download e-visa. You have to click on download e-visa, then there will be a screen like this. You have to choose the name of the person whose visa has been paid for and ready. For example, for me there is one name appearing. For people who have applied for more than one person, there will be a list from which they can choose whose visa to be downloaded. Once you click that name and you press download,
the visa for that person, the e-visa will be downloaded. अब आप ये करेंगे कि जब आपने पेमेंट कर दी है सहल ऐप पे मैसेज देखने के बाद जवाज़ात में जाके, तो पेमेंट करने के बाद वहाँ पे जो बंदा होगा वो आपको बताएगा कि अब आप अपना वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके लिए आप सहल ऐप पे आपको मैसेज आ जाएगा। सहल ऐप पे आपको मैसेज नहीं आएगा, आपको खुद ही मैनुअली जाके, जिस तरह आपने वीज़ा अप्रूवल चेक किया था उसी तरह आपको पेमेंट के लिए भी खुद ही जाके चेक करना पड़ेगा। लेकिन इस दफ़ा वीज़ा डाउनलोड करने के लिए आप फर्स्ट ऑप्शन जो प्रोफाइल है इसमें नहीं जाएंगे, बल्कि सेकंड ऑप्शन जो सर्विसेज वाला है इसको क्लिक करेंगे। फिर आप इसमें नीचे जाके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही सेलेक्ट करेंगे दोबारा से। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर वीज़ा सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड ई वीज़ा का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे चूज़ द विजिटर का ऑप्शन है कि आपने अगर एक से ज़्यादा लोगों के विज़िट वीज़ा अप्लाई किए थे जो अप्रूव हो गए, तो आप इस पर क्लिक करके और उस लिस्ट में से उस बंदे का नाम सेलेक्ट कर लें जिसका आपने वीज़ा अप्लाई किया है। मैंने एक का ही किया था तो मेरे पास एक का ही आ रहा है, और उसके बाद आपने ये डाउनलोड का बटन प्रेस कर देना तो आपका ई वीज़ा डाउनलोड हो जाएगा। जब ये वीज़ा डाउनलोड हो जाएगा तो इसको आपने पाकिस्तान अपने उस रिलेटिव को भेजना है ताकि वो उसका प्रिंट निकाल लें, और साथ में पासपोर्ट जब वो ट्रैवल कर रहे होंगे पासपोर्ट के अलावा उनके पास ई वीज़ा की कॉपी होनी चाहिए, उनकी टिकट होनी चाहिए, और जो स्पॉन्सर हैं यानी जो आप हैं जिनकी कफ़ालत में वो विज़िटर आ रहा है उनकी सिविल आईडी की कॉपी भी होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरी हैं, और प्लीज़ मेक श्योर करें कि रिटर्न टिकट बाय हुआ हो, वरना एयरपोर्ट पे परेशानी का बायस बनेगी ये चीज़। और कोशिश करें कि डायरेक्ट फ़्लाइट आप एक्वायर करें वहाँ से। जो लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं उनको फिर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जिसमें ओके टू बोर्ड का ऑप्शन है और दूसरी चीज़ें हैं, तो हमेशा प्रेफर करें कि डायरेक्ट फ़्लाइट से ट्रैवल करें। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम।